Hello and welcome to another episode of Thoughtful Leaders, an initiative by collegedunya.com. Today we have with us Dr. Manoj Kumar Shukla, who is a Pro Vice Chancellor at Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur. Hello and welcome to the show, sir. Namaskar. Ji. So I would like you to introduce yourself, sir, first. Thank you. So I start myself with the name which you have already told to all the spectators, that my name is Manoj Kumar Shukla. Presently, I am associated as professor as well as Pro Vice Chancellor of the university, who is named as Harcourt Butler Technical University, Kanpur, previously known as Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur. Established in 1921, and hopes so that it is the sixth oldest technical institution in India, and second in northern India. It was the Thompson College of Engineering, which is known presently as IIT Roorkee. So it was established in 1921. Way back, the IITs were started in 1960. So this is the very, very old institutions, and in those days, even the name of the degree was non-known. It was known as HBTI A and HBTI F. Means HBTI Associate and HBTI Fellow. Even BTech name was not there. Even AICT was not formed. Even UGC was not formed. So this institute, or now which has been converted to university in 2016, has a very, very great legacy. I am very proud to be associated with such institution as professor and as a Pro Vice Chancellor. Previously, I was working here as a registrar also for 1.5 years. And also I was associated with one MBA institute as director for 3 years. That is known as STEP HBTI, which is basically MBA institute in the land of HBTO Kanpur. So I was there also for 3 years. Presently, I am associated as Pro Vice Chancellor of the university. Please. Okay. If I account for my educational credentials, I did my BTech in 1989 from Amravati University. Then did my MTech. Actually, then I went into the industry. So, in the teaching profession, generally the teachers who are available, they are not from industry. They did BTech and MTech and PhD, basically little bit laboratory knowledge and rest all theoretical knowledge, and they come to the teaching profession. Luckily, I gone to industry, and around for 12 to 13 years, I was there in television manufacturing industry and weighing machine manufacturing industry. I was in core R&D division, designing the circuits for all those things. So that knowledge was very much helpful when I decided to come in teaching. So after 10 to 12 years of work in industry, I came back into teaching and did my MTech at the age of 35 years, you can say. So I was in from MNIT Allahabad, which was known as Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad in those days. Now it is Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad. Then after 1.5 year period, I decided to proceed for my PhD degree also. So I did my PhD in wireless communication, and after in the duration of doing the PhD, I was selected as an associate professor. In those days, the name was assistant professor in HBTI Kanpur. Now in 2016, I am the lucky fellow again to be a part of process by which this institute became the university. I was a member of that team who has written the act of the university. So at 2016, I became university, and being a part of university, whatever the responsibility was given to me, I was obeying that. 2018, I was given the responsibility of registrar. Then in 2019 last, I was given the responsibility of Pro Vice Chancellor, which is with me at home. And if I see my credentials towards the academic one, I have around more than 100 papers in my account. Many journals are with me where I am editor, or in addition to it, I am reviewer of various other technical institutions in BOS of the many universities. Some chances have been given to me to review the syllabus, so I am the part of that.
So whatever the opportunity is being given to me to serve the nation as well as to help students, I feel lucky myself because I know that God always gives the chance to help them others, and it is our duty to provide the whatever the God has given to us to distribute it. Because as I have learned it from my childhood, that education is that thing which if we distribute it, it generally it certainly gets multiplied. Please. I definitely agree with you, sir, on this. So I have another question for you. Being a pro vice chancellor, what is your philosophy of leadership? Good. So if you talk about the philosophy of the leadership, what should be my philosophy? Generally, if I talk about the general leadership, all the leaders, whoever are in education or in any field, including the battlefield also, leader must have the clear vision. And he must be the true leader also. In terms, whatever he decides, other has to follow. So he has to decide anything in a very clear manner. He has to take the decision in a very clear way. He must acknowledge the weaknesses and strengths of the group as well as for himself also. He must be highly ethically standard person. So these things must be very clear in a leadership. And I feel that I am very much alert in all these cases. I always keep whatever the things I can learn from the society, and even my juniors also. I always adopt the changes. I used to hear them also whenever it is possible, whenever they are available to me, they say anything to me, I hear them. And one more thing which I would like to say that जो भी आप जीतते हैं वो आप अपने दम से नहीं जीतते। ये मैं अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि जो भी आप पाते हैं इस दुनिया में, आप ये सोचना भूल जाएं कि ये आप अपने दम से पाते हैं। ये आप एक दल, एक टीम के दम से पाते हैं। तो अगर आप एक टीम के दम से पाते हैं तो श्रेय पूरी टीम को जाता है। एक लीडर का मुख्य कर्तव्य ये होता है कि अपने दल की कोई भी समस्या को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना और अपना विजन अपने दल की सफलता के प्रति बहुत स्पष्ट रखना। हमें ये साफ पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जहां तक हम अपने बच्चों की बात करें तो हमें छात्रों को भी ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए और साथ में छात्रों को तैयार भी करना चाहिए कि द स्टूडेंट्स मस्ट यूज द डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शंस टू सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उनको अपनी कमियां, अपनी मजबूतियां दोनों पता होनी चाहिए। बच्चों को ऐसा हम बनाएं कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें। ऐसा नहीं है कि वो रटें, पास हो जाएं और फिर बाद में नौकरी पे चले जाएं और भूल जाएं। नहीं, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी चाहिए। उनको हमेशा सीखते रहना चाहिए, जैसा कि हम सबको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कोई भी मनुष्य पैदा होने के बाद हमेशा सीखता है और वो अंत समय तक सीखता है, जब तक वो जिंदा रहता है। इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो मैं समझता हूँ क्या सीखते रहना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है सीखने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखता हूँ, मैं अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी को देखता हूँ। मुझे कहीं पर ये इनके दोनों के नाम लेते वक्त ये नहीं पता चलता कि मैं किसका नाम, मुझे लगता है कि मैं भारतीय का नाम ले रहा हूँ जिसने जिंदगी भर सीखा। वर्तमान में तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी, आप कभी भी उनका इंटरव्यू देखो तो मैं समझता हूँ, और राजनेताओं का तो इंटरव्यू देखते समय कई बार हम लोग टीवी या रिमोट को ऑफ कर देते हैं, लेकिन मोदी जी के बोलते समय कोई ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो दिल से दिल जोड़ के बात करते हैं। तो मेरा भी मानना है, हम अगर बच्चों से जब बात करते हैं तो हम आई टू आई कॉन्टेक्ट रख के बात करें, उनके दिमाग को समझें, उनको क्या चाहिए। जब भी हम पहली कभी क्लास लेते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं सभी शिक्षकों से यही कहता हूँ यही कि जब आप क्लास में जाएं तो क्लास में जब पहला टॉपिक बताएं तो पहले उनको ये बताएं कि बच्चों को वो पढ़ना क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू देम। वो इसलिए नहीं कि उनको एग्जाम में पास होना है, उनको ये बताना है कि वो पढ़ना इसलिए है कि उनको जिंदगी में वो कब कब काम आएगा। जब बच्चों को ये पता चलेगा कि कोई चीज उनके काम आने वाली है और जिंदगी के किस किस मोड़ पे काम आने वाली है,
तो उनको उसे याद करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि वो उसको लिंक करेंगे। जैसे मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, छात्र से, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। उससे मैंने पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा, सर मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में आजकल, मुझे दिक्कत होती है, मुझे लगता है मन करेगा मुझे ये फलानी किताब चाहिए तब मैं पढ़ पाऊंगा, या मुझे वो कोचिंग में जाऊंगा तो पढ़ पाऊंगा। तो मैंने कहा, बेटा एक बात बताऊं, अगर मैं तुमसे कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम दौड़ जाओ, तो तुम शायद नहीं दौड़ोगे आसानी से। तुम सोचोगे कि अभी मूड नहीं है दौड़ने का, कल दौड़ लूंगा, परसों दौड़ लूंगा, और मैं तुम्हारे पीछे अभी शेयर लगा दूं तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस गति से दौड़ोगे जिस गति से शायद ओलंपिक का रेसर भी नहीं दौड़ता होगा। सीधी सी बात है, योर प्रायोरिटीज गेट्स चेंजेस व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो इमेजिन द प्रॉब्लम इज देयर बिफोर बिहाइंड यू, इमेजिन इट। सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पीछे समस्या आ गई, और जुट जाइए काम करने, और तब आराम लीजिए जब समस्या का अंत कर दीजिए। यही मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है। मेरे हिसाब से देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क। मेहनत कीजिए और जिंदगी को सफल बनाइए। लेट अस मेक द लाइफ हैप्पियर फॉर सोसाइटी एज वेल एज फॉर अस। Sure, sir. The next question would be, how does the curriculum of HBTU college ensure the best practice of industry? बहुत अच्छा प्रश्न, वाकई ये बहुत अच्छा। मैं इस प्रश्न को सबसे रिलेवेंट मानता हूँ। देखिए, मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि अधिकांश टीचर्स बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं और पीएचडी करते हैं, और चाहे वो आईआईटी क्यों, चाहे एनआईटी क्यों, चाहे कहीं क्यों, और वो टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। लेकिन क्या उनको, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को या किसी मैकेनिकल इंजीनियर को एक मोटरसाइकिल दे दूं और कह दूं खोल के इसे वापस असेंबल कर दो, कर पाएगा? यहीं पर उसकी यूटिलिटी आती है। मेरे हिसाब से उसको करना चाहिए। उसको इंजीनियर तभी मैं कहूंगा जब वो ये करने में सक्षम हो, जब वो एक डिजाइन करने में, कम से कम एक छोटा पार्ट ही डिजाइन करने में माहिर हो, कम से कम उसका कार्बोरेटर ही मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन करने में माहिर हो जाए। अगर इस लेवल का नॉलेज नहीं होता है तो मैं उसे इंजीनियर नहीं कहता। मेरे हिसाब से वो एक थ्योरेटिकल पर्सन है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं तो मेरे हिसाब से, मैं जब एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के मैं बीओएस में था, तो मैं बैठा, तो वहाँ प्राइवेट कॉलेजेस भी इस ग्रुप में रहते हैं, तो उनके लोग भी बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सिलेबस को डिजाइन इस हिसाब से करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप इंडस्ट्री से पूछिए उन्हें क्या चाहिए। आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट फॉर द मार्केट वेयर द इंडस्ट्रीज आर देयर, बट यू आर नेवर आस्किंग टू द इंडस्ट्री व्हाट दे नीड। आपने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, उनको किस तरह का बच्चा चाहिए, उनको जो बच्चा चाहिए उसे क्या नॉलेज होना चाहिए। नहीं, आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए और उनको मार्केट में बच्चों को उतार दिया। तो बच्चे भी निर्दोष हैं, उनको तो पता ही नहीं कि अब वो वहां जाते हैं जब इंडस्ट्री वाले के पास कि साहब मुझे एम्प्लॉय कीजिए, तो कहते हैं वो क्यों एम्प्लॉय करें, आपको क्या आता है, आपको तो ये चीज आती नहीं। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो समझ के चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में क्या चाहिए और उस हिसाब से हम अपने करिकुलम को डिसाइड करें। इसको ख्याल में रखते हुए जब हम प्रो वाइस चांसलर के रूप में मैंने जिम्मेदारी संभाली, मैंने माननीय कुलपति जी से अनुरोध किया और हमने अपने सिलेबस में उसी हिसाब से बहुत कुछ बदला है। मैं ये नहीं कहता पूरा बदला है। तो हमने जो मुख्य चीजें डाली हैं मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज हमने डाली है कि हमारे यहाँ का हर शिक्षक 3 साल में एक बार इंडस्ट्री में जाकर के समर वेकेशन बिताएगा और उनको देखेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है और वहां से प्रॉब्लम्स को भी समझेगा और उनकी समस्याओं को हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट लेके आ जाएगा। हमारे बच्चे भी इसी बहाने जा सकेंगे। ये जो इनोवेटिवनेस है ये मैं समझता हूँ भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे यहाँ हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी चीज हमने डाली अभी हाल में कि जो भी बच्चा अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है
यदि वो टेक्निकली स्ट्रांग है तो अपनी इंडस्ट्री अगर लगाना चाहता है तो हमारे यहाँ से वो 1 साल का गैप भी ले सकता है ड्यूरिंग पढ़ाई। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद वो जा सकता है, अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, चल जाए बहुत अच्छी बात है, न चले तो लौट के भी आ सकता है। हमारे यहाँ इनोवेशन इंक्यूबेशन की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, वित्त की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है, और ये सुविधा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो शिक्षक नहीं है, समाज में है, वो लोग भी आकर के इस तरीके की सुविधा हमारे इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर से ले सकते हैं। तो ये कुछ मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं जो और अन्य जगहों पर नहीं। जी, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यूनिवर्सिटी के क्या टॉप प्रायोरिटी हैं अभी आने के 10 सालों के लिए? विश्वविद्यालय की अगर हम आगे के लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग कहने को विश्वविद्यालय होते हैं भारत में, बट सच ये है कि क्या हमारे यहाँ विश्व स्तरीय बच्चे आने को तैयार होते हैं? उत्तर बहुत आपकी आंखों में मुझे दिखाई पड़ रहा है। उसके लिए क्या माहौल होना चाहिए? हमारे यहाँ उस तरीके की क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्या हमें सरकार से उस तरीके का सहयोग मिलता है? हमारे सरकारों के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वो उनको विदेशी छात्रों और छात्राओं को, शिक्षकों को, जैसा कि आईआईटी में वो इजीली इंगेज हो जाते हैं, क्या हमारे एंगेज होने की सुविधा है? नहीं। तो ये जो इसमें जो मैं कहूंगा हमारे जो अगले 10 साल के लक्ष्य हैं, इसके 2 हिस्से में करना चाहूंगा। पहला हिस्सा कि विश्वविद्यालयों को क्या करना चाहिए, दूसरा हिस्सा सरकारों को उसमें क्या करना। विश्वविद्यालयों को अपना गुणवत्ता, जैसे कि मैंने डिसाइड किया, अपना सिलेबस उद्योग की मांग के अनुसार बदलना, और हम बदल रहे हैं लगातार। लेकिन हमारे यहाँ जो भी छात्र शिक्षक अनुपात है, जितने भी शिक्षक हैं, जैसे मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को स्टडी किया, वहां पर 1:5 1:5 का अनुपात है वहां शिक्षकों और बच्चों में। अमेरिका में जनरली सामान्यतः देखा गया है कि 10 छात्र पर 1 शिक्षक है। भारत में एआईसीटी ने 20 छात्र पर 1 शिक्षक निश्चित। मैं समझता हूं ये बड़ा विचित्र अनुपात, इतना विचित्र अनुपात किसी भी स्थिति में उचित नहीं। यहाँ पर अब ये प्राइवेट संस्थानों के साथ तो थोड़ा इजी रहता है, बट सरकारी संस्थानों के साथ थोड़ा सा टिपिकल स्थिति होती है कि जो पदों का सृजन होता है वो सरकार के हाथ में होता है। So whatever the government has to decide how the post will be created, we don't have upper hand on that because the funds has to be given by the government. We have to provide the education even to the person who is a child who doesn't have proper money, proper amount, proper fees to pay. In our university also, we are having very, very poor child also. In that case, we are going to contribute. Sometimes the students are contributing to each other and providing the fees to that particular person. And for considering all those cases, our university from last year, we have raised a fund. We have raised a fund for helping such students where they are unable to either deposit their fees or possibly their parents, their father or earning member have died. So due to that reason, they are not able to deposit the fees, या और भी कई कारण, खुद भी अपंग हो गए हैं या किसी प्रॉब्लम में है या माता पिता बीमार हो गए हैं, पैसे नहीं रह गए हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ अभी 1 साल 1.5 साल से 2-3 फंड बनाए हैं, जिनसे कि हमने इस साल भी बच्चों की मदद की है, उनकी फीस भी कुछ की माफ की है। लेकिन हमने एक कमेटी बना करके उसके माध्यम से ये चीज देखते हुए जो भी हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं या जो भी विपदा के हमारे बच्चे हैं, उनकी मदद के लिए ऐसा किया है। तो जब भी हम आगे की बात करते हैं कि हमें 10 साल का क्या प्लान बनाना चाहिए, तो हमें इन सारे फैक्टर्स को देखना होगा। फिलहाल हमने ये बना रखा है कि हम अपने विश्वविद्यालय में वाकई एक अच्छी रोजगार परक शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म अच्छा बना रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में हमारे बच्चे
जो भी हमारे यहाँ से पास आउट हो वो HBTI या HBTU के ब्रांड को अच्छे से पूरे विश्व में फैला सकें, हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें, हम विश्व की टॉप 100 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में अपनी काउंट करा सकें, अपनी गिनती करा सकें, हमारे छात्रों को वो सारे हम सुविधाएं दे सकें, चाहे वो छात्रावास संबंधी हो, चाहे वो शिक्षण संबंधी हो, चाहे वो सेवा योजन संबंधी हो, और चाहे उनकी जिस भी यानी कि सर्वांगीण विकास से संबंधित हो, हर तरीके की समस्याओं को उनकी हम निराकरित कर सकते। मैं समझता हूँ थ्योरेटिकली कई पैरामीटर गिना देना, कई घटक गिना देना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और वो संतुष्ट होके जाता है, तो मैं समझता हूँ हमने सारे के सारे पैरामीटर। जी जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आपके कॉलेज की सबसे स्ट्रेंथ्स क्या लगते हैं आपको, बेस्ट स्ट्रेंथ्स आपके कॉलेज में? हमारे विश्वविद्यालय की जो सबसे बड़ी मजबूती है जो मैं समझता हूँ वो है हमारा एलुमनी बेस। हमारा एलुमनी बेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये विश्वविद्यालय पहले कॉलेज था, बहुत पुराना है। एलुमनी मीट्स में भी मैंने कई बार कई विदेशियों को भी देखा है जो कभी यहाँ पढ़े होंगे 1947 के पहले। तो पहला तो यही है, हमारे जो भी मुख्य बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स या मालिक हैं वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट, हमारे छात्र रहे हैं। बहुत अफसर लोग हैं, बहुत IPS IAS हमारे यहाँ से हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो एक तो हमारा एलुमनी बेस बहुत अच्छा। दूसरा, ये विश्वविद्यालय भारत का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी की सारी ब्रांचेस एक जगह एक संस्थान में है। मैं नाम गिना दूंगा। केमिकल टेक्नोलॉजी के अंडर में केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी और इसी तरीके की अन्य टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस, ये सारी हमारे यहाँ एक छत में है। जैसे फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी हमारे यहाँ अंडर बन। उससे क्या फायदा होता है कि ये सारी की सारी ब्रांचेस आपस में अच्छे से सामंजस्य लेकर के कार्य कर सकते हैं। किसी भी संस्थान में, भारत में ही नहीं, एशिया में किसी संस्थान में ये सारी की सारी ब्रांचेस एक जगह पर नहीं। तो जहां तक प्लेसमेंट की बात करें, जितनी भी टॉप की पेंट इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी टॉप की फूड इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी टॉप की प्लास्टिक इंडस्ट्रीज हैं या ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, एडिबल ऑयल की, ये मुख्य रूप से जितनी भी टॉप पोजीशंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी होती हैं, हमारे यहाँ के छात्र हर जगह छाए हुए। तो ये एक ब्यूटी हमने जो बताई, तो पहली ब्यूटी हमारा अच्छा एलुमनी बेस है। दूसरा हमारा अच्छा टेक्नोलॉजिकल बेस है कि हमारे यहाँ सारी टेक्नोलॉजी की सारी ब्रांचेस हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो अटैचमेंट है छात्रों का आपस में और शिक्षकों का, मैं अब कई और जगहों का छात्र रहा हूँ, मैं और जगहों के लिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वो मेरे भी कभी इंस्टीट्यूट रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना यहाँ पर छात्र छात्र की मदद करते हैं मुझे और जगह नहीं दिखाई दी, क्योंकि और जगह मैं छात्र के रूप में मैंने देखा। तो एक जो भावनात्मक संवाद यहाँ पर स्थापित होता है छात्रों का आपस में, छात्रों का एलुमनीज के साथ, वो एक अनोखा उदाहरण है। कई बार मैंने अभी बताया कि छात्रों के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो छात्र शिक्षकों को पता नहीं लगने देते, खुद ही कंट्रीब्यूट कर देते थे। पहले उसी को देख करके हमने अब फंड बनवाए ताकि ऐसा बार बार छात्रों को न करना पड़े और हम उनकी मदद कर सकें। तो वो फंड बनवा के अब हम बच्चों में इस तरीके से जो नीडी बच्चे हैं हम बंटवा रहे हैं, लेकिन पहले तो छात्र ही इकट्ठा कर लेते थे। तो ये कुछ चीजें जो है मैंने देखी, जो मैंने किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं। जी, अगला सवाल मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बट अगर आपके पास कुछ और है जो आप शेयर करना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, जो बच्चों के लिए यूजफुल हो सके, सो आप वो शेयर कर मैं सकते हैं। एक सामान्य सी बात कहूंगा इसमें। एक बहुत समयाकालीन प्रश्न है। अक्सर छात्र ये पूछते हैं कि मैं कौन सी ब्रांच लूं। मेरे यहाँ भी जो छात्र आते हैं
उनको ये लगता है कि शायद कंप्यूटर साइंस सबसे अच्छी होगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे अच्छी होगी, या केमिकल सबसे अच्छी होगी, या पेंट सबसे अच्छी होगी, या कौन सी अच्छी होगी। जिस ब्रांच में मैं पढ़ रहा हूँ शायद वो अच्छी है नहीं है, मैं दूसरी ब्रांच में जाना चाहूंगा। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि बेटा कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, अगर आप अपनी ब्रांच में माहिर हैं। मैं तो एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, अगर आप चमड़े के जूते भी गांठते हैं और उसको गांठने के आप माहिर हैं, तो यकीन कीजिए लोग लाइन लगा के खड़े। और अगर आप कार सुधारने की दुकान खोल लेते हैं, अगर कार सुधारना आपको अच्छे से नहीं आता, तो शायद आपके यहाँ एक भी कस्टमर। तो बेहतर यह है कि आप क्या हैं, जो भी जिस भी ब्रांच में है, कोई ब्रांच खराब नहीं होती और कोई ब्रांच अच्छी नहीं होती। निश्चित तौर से जब भी छात्रों को अपना कैरियर चुनना चाहिए तो उनको पहले इंस्टीट्यूट देखना चाहिए, उसकी बिल्डिंग नहीं। इंस्टीट्यूट कैसा है, वहां पर कैसे शिक्षक हैं, वहां कैसे हमें साथी मिलेंगे, क्योंकि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर हाई रैंक बच्चे होते हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलता है। एक अच्छा माहौल मिलता है तो एक अच्छी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसका निर्माण होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ गुड कंपटीशन, द स्टूडेंट्स whoever are studying over there, they are going to rise each and every time. Or if they are living with the students who are low ranked, who are not good, who are not studious, in that case they may get spoiled their career. तो कहते हैं ना, संगत से बहुत कुछ सुधरता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी अच्छा विद्यालय, विश्वविद्यालय चुनते समय आप उसकी साख को देखें, उसके शिक्षकों को देखें, उसके भवन को बाद में देखें। ये देखें वहां छात्र कैसे हैं, और ये ना देखें कि कौन सी हमको विधा या ब्रांच मिलने जा रही है। आपको कोई भी विधा मिले, आप उसमें माहिर हो जाएं, आप उसमें इतना अच्छा अपना ज्ञान कर लें कि लोग आपके घर आपको बुलाने आए। मैं समझता हूं यही जिंदगी का क्रक्स है। मैं बार बार कहता हूं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एक्सेप्ट हार्ड लेबर। मेहनत करिए, मेहनत करिए और घर, समाज, देश और दुनिया को खूबसूरत बनाइए। खुश रहिए, खुशी बांटिए। जी, थैंक यू मनोज कुमार सर। मेरा इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि HBTU यूनिवर्सिटी कैसी है और क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं, और काफ़ी एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने में आपने हमारी काफ़ी मदद की है। मैं कॉलेज दुनिया की पूरी टीम की तरफ से भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी मौका दीजिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कॉलेज दुनिया के पूरे समूह टीम को। उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने छात्रों के साथ में या अन्य छात्रों के साथ में एक संवाद स्थापित कर सका। एंड इट इज रियली माय प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।